وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سامعین، عادل آباد تلنگانہ کے دو بندوں کی باہمی بات چیت میرے پاس آج کسی نے بھیجی. میں نے پوری گفتگو سنی تو پتہ چلا کہ یہ تبلیغی جماعت کے دونوں دھڑوں کی آپسی ہم کلامی ہے. امارت والے شورا والے کو غلط بتا رہے تھے اور شورا والے امارت والے کو. یہ بات تو خیر تقسیم کے پہلے دن سے ہی ہو رہی ہے. اس بات چیت میں یہ بھی آیا کہ امارت والے شورا والے کو توبہ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ امارت والے نے سعد حفیظ اللہ کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے پر کہا کہ ہم دارالعلوم کو تو مانتے ہیں مگر موجودہ مفتیوں کو نہیں مانتے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان چاٹوکار ہیں. یعنی سعد کاندھلوی حفظ اللہ کے خلاف دارالعلوم کا فتویٰ چاٹوکار اور چاپلوس قسم کے مفتیوں نے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری بات چیت سننے سے پہلے ایک تحریر سن لیجئے جو بات کرنے والوں میں سے ایک صاحب کے بارے میں ہے. امارت کے اسی بندے نے ایک ہفتہ پہلے شورا کی جماعت کو اپنے علاقے میں آنے سے منع کر دیا تھا. اس موقع پر ایک صاحب نے خبر دیتے ہوئے لکھا، یہ آڈیو کال 3/10/2024 تاریخ کی ہے، جو تبلیغی جماعت کے ایک دھڑے کے امیر مولوی سعد صاحب کی عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک صاحب کو فون کر کے دھمکی آمیز گفتگو کی. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ تقریباً 2 ماہ قبل ایک سہروزہ جماعت شورائی نظام کے تحت چلنے والی ترتیب پر کام کرنے کے لیے بھینسا کے قریبی کوبیر منڈل جامع مسجد میں آئی. الحمدللہ متحدہ ضلع عادل آباد میں شورائی نظام کے تحت آنے والی یہ پہلی جماعت تھی. اس جماعت کا آنا تھا کہ امارتی حلقے میں کھلبلی مچ گئی اور چند ذمہ دار احباب جماعت سے بات کرنے کے لیے کوبیر روانہ ہوئے اور جماعت سے بات کی کہ کس کے مشورے سے آئے، کس کو اطلاع دے کر آئے، کن کن سے ملاقات کی، مرکز کو اطلاع کیوں نہیں دی. ایسے کچھ سوالات جماعت کے ذمہ دار سے کرنے لگے. لیکن الحمدللہ کوبیر کے مقامی علماء اور مقامی بااثر ساتھیوں نے یہ کہہ کر ان کو چلتا کر دیا کہ یہ مہمان جماعت ہے، کچھ بات کرنا ہے تو جن لوگوں کے مشورے سے یہ آئے ہیں ان سے بات کیجیے. یہ تو ہمارے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ کہہ کر ان کو چلتا کر دیا، جس سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر ابھی اس ہفتے میں ساٹا پور جامع مسجد میں شورائی ترتیب پر نظام آباد ضلع کا جوڑ ہوا، جس میں 500 کے قریب احباب نے شرکت کی. خاص بات یہ ہے کہ ضلع نظام آباد کے تبلیغی جماعت کے ایک دھڑے کے حلقہ مولوی سعد صاحب کے اہم ذمہ دار محترم کے فرزند نے بھی اس جوڑ میں شرکت کی. گجرات کی مہمان جماعت کوبیر آنے والی ہے. اس کی اطلاع پا کر امارتی حلقے کے ایک بندے نے شورا کے ایک صاحب کو کال کر کے یہ دھمکی آمیز گفتگو کی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امت کو حقیقت سے آگاہ ہونے نہیں دینا چاہتے اور ان کا مقصد یہی ہے. دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ جس میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا کہ مولوی سعد صاحب اپنی کم علمی کی بنا پر اہل سنت والجماعت کے جمہور طریقے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو کہ بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے. اگر اس پر قدغن نہ لگایا گیا تو اندیشہ ہے کہ آگے چل کر امت کا ایک بڑا طبقہ فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کرے گا. دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کی اس بات کو پوشیدہ رکھ کر امت کے افراد کو اندھیرے میں ہی رکھنا چاہتے ہیں. سامعین، خبر لکھنے والے کی بات پوری ہوئی. ان صاحب نے وہ دھمکی آمیز آڈیو ہی بھیجا تھا جو آپ اخیر میں سن لیجئے گا. پہلے تازہ بات چیت سن لیجئے. یہ بات چیت سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ خیریت؟ الحمد. میرا نام زبیر ہے، بہت سے بول رہا ہوں. خیریت؟ کیا حال ہے جی؟ زبیر؟ ہاں جی.
कहाँ से? मैं बोध से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मुलाकात हुई नहीं कभी अपनी? मुलाकात हुई जैसा अंदाजा बोल कभी? आवाज कट हो रहा आपका। हाँ, क्या है मसरूफियात? कौन सी हमारी मसरूफियात? जी जी जी, मैं वेल्डिंग की दुकान चलाता हूँ। बिल्डिंग। क्या हो जमातें आ रही बोल के सुने? हाँ, कैसा चल रहा है? अच्छा, नहीं, वो इससे पहले आई थी जमात वो, जी और उनको जाके समझा दिए थे जी जी जी, अपन, हाँ जाके समझा दिए तो ठीक है, सब भेजते नहीं करते नहीं, आके भी नहीं बोलते, सब बोल दिए तो हम दे देंगे, समझा समझदारी। कहाँ पर आई थी जमात? ठीक है, तुम वो कुबीर मंडल में। अच्छा अच्छा, कुबीर में, हाँ समझा के नको बोले आप? जी हो। क्यों नको बोले है? हाँ, क्यों नको क्यों मना करे? क्यों मना कर रहे बोले तो जी, वो इतना जो है ना, सरंगीजी वाला है उन्हें हाँ, जो लेकर आया था। जी अगर उसके बारे में अगर जुबान खोले तो अपनी जुबान खराब हो जाए। जी, नहीं काम तो देखो, चाहे शूरा वालों का हो, अपना अमरत का काम तो दीन का एक ही अल्लाह का काम है, दूसरा थोड़ी है। नहीं, अब जो भी काम कर रहे देखो अल्लाह के वास्ते कर। बहुत तो गलत फहमी है जी, गलत फहमी तो वही है ना, तो शैतान तो यही लेकर आ रहा। नहीं वो भी दिन का काम है, वो भी दिन, उन्होंने कुछ गलत वो भी दिन का काम है, ये भी दिन का काम है बोल के तो शैतान लेकर आ रहा। देखो जी, आपकी मसरूफियत क्या है? मैं तिजारत हूँ। मैं तिजारत है। कहाँ से? बोध से थे? हाँ हाँ। आपका पूरा नाम? पूरा नाम मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर है जी, वो 4 महीने लगे आपके? मैं बोलने का सुनो, वो बात नहीं है। मैं क्या बोलूं, सुनो तुम, आपके 4 महीने लगे? नहीं लगना अलग बात है। वो नहीं, मैं पूछूं तो बात को बोलूं जी। बोलो तो देखो, ये काम में जो जैसा काम, ये देखो गहराई में गया उसको उतना समझ में आता, खाली ऊपर ऊपर डुबकी मारे तो समझ में नहीं आती ये बात। हाँ जी, अल्लाह के फजल से मैं 1984 से काम में लगे हुआ हूँ, तबलीग का पक्का कीड़ा हूँ मैं। लेकिन ये सूरा हमारा बोल के क्यों आप लोग शिद्दत कर रहे हैं बोल के मैं ऐसा मालूम हुआ तो हमने का शिद्दत जी बात नहीं, शिद्दत किसको बोलते हैं? अब ये देखो काम हो रहा आप लोग को, क्योंकि अब हजरत जी मौलाना तुम्हारे साथ थोड़े बयानात उल्टे पलटे गलत करने की वजह से ये लोग शूरा अलग बन गई। वजह क्या है बोलो तो हजरत जी क्या कहे, उनके बयान सुने आप। इसकी वजह से क्या है, मौलाना लाल साहब, मौलाना अहमद साहब अलग होने की वजह वही बात वो नहीं है जी, बात वो नहीं है, ये तो उसको सामने मुद्दा बना के अलग हुए वो नहीं, मुद्दा नहीं, बात वो नहीं है। सुनो तुम मेरी बात को, ये जो है कि नहीं जी, अब वो उम्मत को क्या समझाना, ये नो बयान गलत कर रही है, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे बोल के दीन के रास्ते से हटाना है, समझाना। सुनो तुम असल बात, तुम भी नहीं समझते, मैं भी नहीं समझता हूँ। उनके खुद लफ्ज जबानी बातें मैं आपको सुनाऊंगी, उनको क्यों भी बहुत कुछ है। हाँ, फिर आप कहीं को देखो भाई, गलत बात तो फैला के उनसे गुमराह करना क्या मकसद रहता है? हम कहने जो बातें जो कहे इनके बातें मैं कहूँ बोल रहे हूँ, तुम वो मैं कहूँ बोल रहे, मैं साबित कर तुम बोल रहे। बड़े बड़े दारुल देवन के फतवे को इनकार करे। दारुल देवन समझा है उनको 10 साल से कि भाई तुम गलत बातें कुरान हदीस के हटके तुम तहरीफ कर रहे, ये बातें मना बंद करो बोले, तो भी उनको मैं साबित करता हूँ तुम्हारे इल्म से नहीं गुजरी बोले बातें। ये बात तुम्हारे हमारे समझ में आने वाली नहीं है, अपन यही टुक्कियां मारने वाले हैं। टुक्कियां कहीं घुमा दे, वो गहराई में नहीं जाते जी आप, वो उसमें अकल कौन सी अकल है तुम्हारे को, बोलो। वैसा नहीं जी, टुक्कियां मारने वाले कैसा बोल रहे भाई? हक पर वही बोलूं मैं, देखो हक पर इल्मों के साथ रखो, इल्मों में इजाफा होता तुम्हारे। आलिम बनना फर्ज नहीं है, मालूमात करना आलिम बनना फर्ज नहीं है, सही है। वो सुनो तुम मेरी बात, अगर इतना गलत बोल रहे तो लाखों के उलमा किराम दारुल एक साल लगा रहे आज भी। अच्छा, एक साल लगा रहे। दारुल देवन से कोई बड़े है क्या? और तो 2 साल लगा रहे। नहीं, दारुल देवन को क्या मानते आप? ये देखो इल्म में कोई बड़ा छोटा नहीं है, क्या बोला था? इल्म समंदर है, इल्म समंदर है। इनके इल्म की कमी की वजह से नो गलत समझ के जो है ना गलत बोले होंगे, हो सकता। हाँ, ये इजलाह कर लो, बना करो, जो गलत उम्मत के अंदर जो बातें तुम फैलाए उसको तुम रुजू करो। दारुल देवबंद वालों की इल्म की कमी की वजह से भी हो सकता है ये। नहीं, दारुल देवबंद को नहीं मानते क्या आप?
इसीलिए देखो, सुनो तुम मेरी बात जी, को, जी। वो हमारी आन बान शान है। वहाँ के उलमा को मानना नहीं मानना ये अलग बात है, दारुल देवबंद को मानते। हाँ जी, दारुल देवबंद में जो हक परस उलमा है उनसे इल्म तो इनका बड़ा नहीं है ना, देखो उनसे उम्र में बड़े, इल्म में ज्यादा है। उसमें जो फतवा देने वाले वो दो चाटुकार है, अब उसको नहीं मानते हम। कैसा रहता चाटुकार? तुम उसको नहीं मानते, उसमें चाटुकार है बहुत है। अरे भाई मौलाना, अरे तुम सुनो जी, मौलाना सलमान बिजनूरी है, वो लोग चाटू करेगी। तुम ये वो सब नहीं करते भी, तुम ये मौलाना देखो, कोई चीज मशवरे से तय हुई तो उसको करना है ही नहीं करना है। मशवरा कहाँ हो रहा है? जो भी मशवरे से कोई चीज अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। हाँ जी, मशवरे से। अच्छा हजरत जी, आप बोलते मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ जी, बोलो तो मैं यहाँ की बात करूँ, तुम्हारी हमारी बात करूँ। हाँ बोलो ना, हमारी तुम्हारी क्या है? एक काम जो है ना, मैं बोध को आने वाला हूँ, उसका मशवरा तुम्हारे लिए भी होगा, हमारे के लिए भी होगा, तो मैं आना नहीं आना? हाँ तो इन्होंने बुलाए तो नहीं गया ना हजरत तुम्हारे? नहीं है। और वो बोलता मैं तुम्हारी मेरी बात कर रहा हूँ तो मशवरे की बात अलग चीज है जी, बातें जो गलत है कुरान तुम्हारी मेरी बात कर रहा हूँ जी, वो जाओ तुम। नहीं, शूरा का अलग होने का माने क्या है बोले तो, इनके जो कुरान हदीस से जो अल्लाह के हाथ में नहीं जी, तुम उधर के गुजारे, तुम ये मशवरे में क्या रहता बताओ? अल्लाह के हाथ में हिदायत है तो अल्लाह नबियों क्यों भेजता? ये बात है क्या? और देखो, मैं तुम्हारे क्या बात कर रहा हूँ, अपने कौम को छोड़ के गए थे, नहीं जाना था उन्होंने, अल्लाह की इबादत के लिए दावत को तरजीह नहीं दिए, उम्मत गुमराह होगी, ये बात है क्या? इस बात को पर दारुल देवबंद नजर रखा। मैं तुम्हारे को जो बात कर रहा हूँ, मशवरा आना जाना और दिन का काम का अलग बात है, ये अलग मौजूद है। लेकिन जो बातें कुरान हदीस के हद में, ये बात तो दीन की है ना। हाँ जी, मशवरा करना अलग चीज है, मशवरा अल्लाह का हुक्म है, मशवरा काम कैसा करना है वो करो, लेकिन जो कुरान हदीस से हट के जो बातें कर, तुम अगर बोल दिए कि तुम्हारा काम जो है ना, उधर जाओ इधर जाओ बोल के तुम जिम्मेदार है इस वक्त के, तुम बोले तो उधर जाना ना। अरे अगर उससे हटेगा तो क्या होता बोलो? नहीं, उससे हटेगा तो क्या होता बोलो? हाँ जी, तो किसको अमीर किसको बनाए बोलो? नहीं बोल रहा, वक्त का जो जिम्मेदार रहता, कौन उन्हें बोला कि तुम इधर जाना, कोई भी XYZ में उन्हें बोला कि तुम उधर जाना जी, अगर उधर नहीं जाके इधर के तो क्या होता बोलो? हाँ तो ये तो बताए ना उनको, उधर मत जाओ, सीधा कुरान हदीस पे जाओ, तो समझाए। अरे यहाँ से तो शुरू हुआ हो, नहीं तुम समझ रहे नहीं, तुम उधर मत जाओ, कुरान हदीस के हट के जा रहे, तुम इधर सही रूट पे आओ बोल के हम दारुल देवबंद समझा, तुमको नहीं मान रहे हो? नहीं जी, ये तो बड़े बुजुर्ग आए कि नहीं, ये बड़े बुजुर्गों की बात भी नहीं करो मैं तुम्हारे को। अरे बड़े लोगों से मान के चलो ना, छोटों को मेरे को तो क्या मानो, अपन तो अंगूठा छाप रहते, अपन अपने क्या आलिम है, अपन अंगूठा छापे बोलते वहाँ तक नको जाओ बोल के बोलो, तुम्हारी सोच भी नहीं है, सोच भी नहीं है। नहीं अल्लाह तुम उधर इधर जा रहे हैं, अकल नहीं है जी तुम्हारे को, अकल नहीं है जी, तुम्हारे को अकल रहती तो तुम ये बड़े बड़े बातें नहीं करते थे, खाली उठाई के बाद में से बात करो। तौबा कर लो, सही तौबा कर लो। मैं इनकार करा, मैंने साहबा के शान में गुस्ताख करा, अल्लाह के शान में गुस्ताख करा, सही तौबा कर लो जी। देखो मैं हजरत जी के बारे में गलत बोल रहा हूँ, मेरी बात को नहीं, हजरत जी के बारे में गलत नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, सही है बात। रुजू करो बोल के दारुल देवबंद फतवा दिया, उनको नहीं मानने की जरूरत है, इनके गुमराही की तरफ जा रहे हैं, एक दिन गुमराही की तरफ पहुंच सकते हैं, उनकी बात है। तुम हम मिलकर गुमराही का रास्ता नहीं चुन सकते, गुमराही का रास्ता उलमाए किराम से उलमाए किराम ही चुन सकते, इसलिए लाखों उलमाए किराम जो ना भी दावत मरकज लाखों उलमा की मजबूरी नहीं रहती। साल लगे बोल के उलमा साल लगाए बोल रहे, कई उलमा के पीछे बोले हजरत जी का साल लगा क्या? हजरत जी का साल अभी यहाँ तक जाते तुम? अरे यहाँ तक जाने क्या है, नबियों की शान, अल्लाह के नबी मामूल से हटे बोले, वो बात तुम्हारा तकलीफ नहीं हो रही की? हजरत जी अल्लाह के नबी अपने मामूल से हटे, अजियत पहुंची बोले, उन्होंने तकलीफ नहीं हो रही आपको? फिर हजरत जी वहां तक जाते बोल रहे नबी से ज्यादा दर्जा दे रहे तुम उनको? नहीं, नबी से ज्यादा दर्जा नहीं है किसी को, दे रहे नबी छोटा हो जाते बोले अल्लाह की नबी अपने मामूल से हटे बोले, वो कैसी बात बोलते? अल्लाह के नबी का मामूल दीन है हमारे लिए। वहाँ मरकज निजामुद्दीन के अंदर ही सालों का साल लग जा रहे, उनका साल लगा के बोले तो कौन सी बात है? हजरत मैं बोलता हूँ, जो दारुल से फारिग होते उसको साल लगा रहे, मैं मान लिया बात, होने के बाद लगा रहे ना, लगा रहे। हजरत जी फारिग हो गए, कई साल होगा, 50-60 साल की उम्र है उनकी, साल लगा क्या?
पूछो जाएगी मालूम हुआ नहीं हुआ तो तुम मालूम करो कि तुम्हारा तशवीश ना हो। सब कुछ साल लगाना चाह रहे हैं, उन्होंने साल लगाए क्या भाई? देखो हम अमीर हम किसको बनाते हैं? चिल्ला लगेस वाले को अमीर बनाते हम। अब मैं रोड पे जाने वाले को 10 बच्चों को देख के अमीर बनाए के लिए तजुर्बा तो होना ना, बड़ों की बात नहीं मान के जो उनका भी साल लगा क्या बोलो तुम्हारे बुजुर्गों का? अरे वो तो जिंदगी साल लगाने में दालिम की दूसरे नहज पे काम कर रहे हो, तालीम इल्म तालीम में लगे रहे। तो बेकार की बात है, ये तो बेकार की बात है। वैसा नहीं बोलने का क्या है, तुम तो सही तौबा कर लो। ये तो बेकार की बात नहीं है। मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, तौबा करना क्या है? मैं किसी पे इनकार कर रहा। शैतान तो काफिर को भी इसी के ऊपर ठहरा कर रहा है, कोई गुनाह नहीं कर रहा, तो तौबा किस बात की है? अल्लाह की कुरान का इनकार नहीं कर रहा, अल्लाह का नबी का इनकार नहीं कर रहा, मेरे गुनाहों पे मैं तो। सामीन, मेरा ताल्लुक तबलीगी जमात के किसी भी ग्रुप से नहीं, मैं दारुल उलूम देवबंद के तर्ज पर दोनों से फासला रखता हूँ। ये ऑडियो पेश करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये सिलसिला बंद किया जाए। झगड़े बहुत हो चुके, अब उम्मत को मुत्तहिद किया जाए। ये उम्मत आपसी झगड़ों से टूट चुकी है। शिया मुसलमान इख्तिलाफ, देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ, देवबंदी गैर मुक़ल्लिदीन इख्तिलाफ, देवबंदी मौदूदी इख्तिलाफ, जमाती गैर जमाती इख्तिलाफ और अब इमारती शुराई इख्तिलाफ, और पूरी उम्मत मा अना अलैहि व अस्हाबी पर आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस उम्मत का इलाज हिटलर जैसे लोग करेंगे, जो बरसों से जारी भी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वो धमकी आमेज ऑडियो समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे? वही जमात का कोई इंफॉर्मेशन है हमारे को मिला था, आने वाली है जाने वाली है, सब कुछ भी बोलते ये आने वाली है क्या बोलते पूछा मैं तुम्हारे को पहले। जी है क्या कुछ तो भी ऐसा तुम्हारे को इंफॉर्मेशन पैसों को भेजने का? नहीं है, अगर वो लोग तकाजा रखे बोल के आए थे हम लोग। हाँ, अगर आए वहाँ कुबीर वाले तकाजा रखे थे ना, जकी साहब उन लोग के मशवरे से आए थे ना हम लोग जब। नहीं जब की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। जी अब प्रेजेंट नहीं कुछ तो भी बात सामने आई तो अगर भेज भी दिए समझो गलती से, वो तो आएंगे जरूर, यहाँ पर आएंगे, काम करेंगे, कुछ भी होगा, बस जाएंगे अपने हिसाब से, नहीं समझो तो हालत कैसी हो जाएगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस बात से मैं तुम्हारे को पहले इंफॉर्मेशन दे दूँ, अगर आने का था या आई बोल के मालूम हुआ तो वो जरा नुकसान हो जाता बोल के तुम्हारे को बचाने के वास्ते बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे इलाके में कहीं भी आ गई तो इस वास्ते एहतियातन तुम्हारे को मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ कि तुम जरा क्या कर सकते हो कि वो कर लो, यहाँ पर भेजने की जहमत मत करो बोलने का मतलब। अगर भेज रहे होंगे तो कोई बात नहीं, भेज सकते। भेजने के बाद उसका क्या अंजाम होगा हम अंदाजा नहीं लगा सकते ना, तुम लगा। तुम्हारे को तो अपन क्यों बोलते, तुम्हारे को तो तुम भी जरा शराफत से बात करे, हम भी शराफत से बात करे, वो बात खत्म होगी, तुम बात लगा लेके चले गए, वो बात नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, अब प्रेजेंट की नई बात बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना? आज तो तुम एक करे जैसे हालात नहीं है बोल के बोल रहे आप। हाँ, यहाँ पर आने के बाद काम करे भी समझो लोग, हाँ तो वापस कैसे देंगे कि वो उसका अंदाजा नहीं बोल सकते तुम्हारे को। अच्छा। हाँ, अभी हमारे दूसरे बच्चे हमारे को अभी फोन करके बोल रहे ऐसे सब मालूम हुआ बोल के बोले, तो मैं तुम्हारे को फोन लगाया, सही है कि गलत है कि बोल, जमात आने वाली है बोल के बच्चे फोन कर रहे हैं हमारे को। अच्छा, हाँ तो मैं बोला सही है कि गलत है कि बोल के तुम्हारे को, तुम जब बोल के गए थे ना नहीं दोबारा नहीं भेजते, हम आते भी नहीं बोल के बोले तो नहीं भैया आना है तो जमात कहाँ सी बात है, माइक लाना जरूरी नहीं है ना, और मैं बोलना मैं भेजना जरूरी नहीं है ना, काम तो सब तरफ चल रहा, माइक भेजना बोल के जरूरी नहीं है। किधर भी चलने दो जी, काम किधर भी चलने दो। अगर तुम्हारे इल्म में आ गई कौन सी भी जमात यहाँ पर जारी बोल के अगर इंफॉर्मेशन मिल गई, अगर तुम रोक सकते तो रोक लो, नहीं रोक सकते तो आन दो। अच्छा, समझ में आ रही बात? हाँ, ठीक है।